اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 81۔ اس سے پہلے ہم نے جو آیات دیکھی تھی پڑھی تھی، ان میں سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا سارا واقعہ بیان ہوا، اور اس کے بعد اہل کتاب کی کچھ چیزوں کا ذکر ہوا کہ جو انہوں نے اپنی بات نہ ماننے کی وجہ سے ان کی جو وجہ ہے بات نہ ماننے کی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دی۔ تو اب اس کے بعد اور پھر انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا کہ لوگوں کو کس چیز کا حکم کرنا ہے، تو اس معاملے میں اہل کتاب نے انبیاء کے اوپر جو ان کے تعلیمات کو بگاڑا، تو اس کا ذکر ہو گیا۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی مضمون کو تقریباً یہ آگے جاری کیا گیا ہے، لیکن تھوڑا سا مختلف ہو کے۔ آیت نمبر 81 میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ نبیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عہد لیا تھا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ جو کچھ بھی میں تمہیں اپنی دے دوں گا، اپنی کتاب اور حکمت کی باتیں جو تمہیں سکھا دوں گا، تو اس کے بعد ثم، جب یعنی پھر، جاءکم رسول مصدق لما معکم، تو جب تمہارے پاس رسول آ جائیں کہ جو ان چیزوں کی تصدیق کریں، جو آیات تمہارے اوپر اتاری گئی ہیں، جو حکمت تمہیں دی گئی ہے، انہی چیزوں کی تصدیق کرنے والے رسول جب آ جائیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو تم سب ان کے اوپر ایمان لاؤ گے، وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، اور تم اس کی مدد بھی کرو گے، اور البتہ تم اس کی مدد ضرور کرو گے۔ قال، کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اقررتم، کیا تم اس چیز کا اقرار کرتے ہو؟ تو قال اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، ایک تو یہ ہے کہ کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو، اور کیا تم نے یہ جو میرا عہد ہے، اسری ہے، میرا جو عہد ہے، کیا تم نے اسے قبول کر لیا کہ جو میں تم سے یہ عہد لے رہا ہوں، کیا تم اسے قبول کرتے ہو؟ قالوا، تو سب نے کہا، اقررنا، ہم نے اقرار کر لیا، ہم نے وعدہ کر لیا۔ قال، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، فاشہدوا، تو گواہ رہو، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تم سب کے ساتھ اس چیز کے اوپر گواہ ہوں، گواہوں میں سے ہوں۔ تو ہم سب گواہ ہو گئے، اللہ کے نبی بھی گواہ ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بذات خود وہ بھی گواہ ہو گیا اس چیز کے اوپر کہ تمام انبیاء نے اس چیز کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کر لیا کہ جب ان کے پاس وہ رسول آ جائیں گے کہ جو ان کے اوپر اتاری ہوئی کتاب اور حکمت کی باتوں کی تصدیق کریں گے، تو تمام رسول ان کے اوپر ایمان لے آئیں گے اور ان کے کام میں مدد کریں گے۔ تو اب یہ والی آیت اور اس سے اگلی آیت دونوں کی تفسیر کو ہم ملا کے کرتے ہیں۔ آیت نمبر 82 میں فرمایا، فمن تولا، فمن، پس جو کوئی، تولا، پھر جائے، بعد ذالک، اس کے بعد، تو جو کوئی اس کے بعد پھر جائے اس بات سے، فاولئک هم الفاسقون، تو یہ لوگ نافرمان ہوں گے۔ تو اب ان دو آیات کی تشریح کی طرف چلتے ہیں کہ انبیاء کا باب جو پہلے ذکر ہو چکا، جو شروع ہوا ہے، تو اس میں بنی اسرائیل سے یہ میثاق النبیین میں جو اضافت ہے وہ فاعل کی طرف نہیں بلکہ مفعول کی طرف ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ انبیاء سے میثاق لیا گیا، بلکہ یہ مطلب ہے کہ انبیاء کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا۔ تو دیکھیں یہ آیات ہم اس طرح سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے بات کی جا رہی ہے، بات نبی سے کی جاتی ہے، لیکن اصل میں وہ بات نبی کی امت کے لیے ہوتی ہے۔ تو یہی معاملہ یہاں پر بھی ہے کہ یہ میثاق جو ہے یہ سارے کا یہ لیا گیا ان نبیوں کی، ان انبیاء کی امتوں سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بنی اسرائیل سے یہ میثاق لے لیا۔ تو یہ کیونکہ اگلی آیت جو ہے نا اس چیز کو ظاہر کر رہی ہے نا کہ جو کوئی پھر گیا، تو اللہ کے نبی تو نہیں پھرتے نا۔ تو اب یہ مطلب نہیں کہ انبیاء سے میثاق لیا گیا بلکہ بنی اسرائیل سے میثاق لیا گیا۔ تو یہ میثاق جیسا کہ اس آیت میں ذکر ہے، اس بات کے لیے تھا کہ
बनी इसराइल चूँकि किताब और हिकमत के उनको दी गई थी और उनके पास ये अमानतन उनको दी गई थी, इसके अमीन बनाए गए थे, तो इस वजह से उनके इस मनसब का ये फितरी तकाज़ा था कि जो अंबिया आएँ, ख़ास तौर पर आखिरी नबी, जब वो आ जाएँ, तो सबसे आगे बढ़कर उन पर ईमान लाएँ और उनकी मदद करें। तो इस अहद का ज़िक्र कुरान में मुख्तलिफ असलूबों से हुआ है। मिसाल के तौर पर सूरा माइदा में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अब वहाँ पर इसी चीज़ का ज़िक्र है, मैं तर्जुमा सिर्फ पढ़ देता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि और अल्लाह ने बनी इसराइल से अहद लिया और उठाए हमने उनमें से 12 नकीब और अल्लाह ने फरमाया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ अगर तुम नमाज का एहतमाम करते और ज़कात देते रहे और मेरे रसूलों पर ईमान लाए और उनकी इज्जत की और अल्लाह को कर्ज़े हसन देते रहे, मैं तुम्हारे गुनाह तुमसे झाड़ दूंगा और तुमको ऐसे बागों में दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें जारी होंगी। जिसने उसके बाद तुम में से कुफ्र किया, इनकार कर दिया, अपनी बात से फिर गया, तो वो वस्त शाहराह से भटक गया, मतलब जो सीधे रास्ते पे वो चल रहा था, वो उस रास्ते से भटक गया। अच्छा, अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो आपके मुतालिक जो मिसाक है उसका जिक्र करते हैं कि इस आयत में रसूल का लफ्ज है जो आम है, मतलब रसूलों जिसका मानी होता है रसूल, रसूल की जमा है। लेकिन एक दूसरी आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी उम्मी फरमाकर भी नबी उम्मी के बारे में भी मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारे में मिसाक की तस्रीह भी मौजूद है, जैसा कि सूरा जैसा कि फरमाया वक्तुब लना फी हादिही दुनिया हसनतम व फिल आखिरति इन्ना खुदना इलैक क़ाल अज़ाबी उसीबु बिही मन अशाउ व रहमती वसिअत कुल्ल शैइन। तो ये आयत लंबी है, मैं इनका तर्जुमा सिर्फ पढ़ देता हूँ कि बस मैंने अपनी रहमत को उन लोगों के लिए लिख रखूंगा जो तकवा अख्तियार करेंगे, ज़कात देते रहेंगे और जो हमारी आयतों पर ईमान लाएंगे, यानी उन रसूलों पर जो इस रसूल और नबी उम्मी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब है नबी उम्मी, यानी वो नबी के जिनको किसी ने पढ़ाया नहीं है, और नबी उम्मी की पैरवी करेंगे जिसको वो अपने यहाँ तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं, जो उन्हें नेकी का हुक्म देते हैं, उनके लिए पाकीज़ा चीज़ों को हलाल ठहराते हैं, उन पर गंदी चीज़ों को हराम करते हैं और उन पर से उस बोझ और पाबंदियों को दूर करते हैं जो उन पर अब तक रही हैं। तो जो लोग इन पर ईमान लाए, उनकी तौकीर की और मदद की और इस रोशनी की पैरवी की जो उन पर उतारी गई, वही फलाह पाने वाले हैं। तो इन आयात से ये साफ मालूम होता है कि यहूद और नसारा दोनों ही से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने और आपकी ताईद और नुसरत का वादा लिया गया था, लेकिन उन्होंने उस वादे की कोई परवाह नहीं की। इन दोनों कौमों ने उस वादे की परवाह नहीं की। इस वादे के कुछ आसार तौरात और इंजील में भी मौजूद हैं, लेकिन अब क्योंकि उनके अंदर बहुत ज्यादा तहरीफात हो चुकी, तो वो तमाम के तमाम जो आसार थे आहद के, अब वो अपनी असली शक्ल में मौजूद नहीं है। तो अब ऐसा लगता है कि जैसे कोई चीज थी ही नहीं। तो अब यहाँ पर फरमाया गया इन आयात के अंदर रसूल मुसद्दिकुल लिमा मअकुम, कि रसूल जो तस्दीक करते हैं उस चीज की जो तुम्हारे पास है। तो इन रसूल से कौन मुराद है? इनसे मुराद है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, इसकी तफसीर जो है वो पहले भी हो चुकी है सूरह बकरा के अंदर। इसके दो पहलू हैं। एक खास अहमियत रखने वाला पहलू ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर और आपकी सिफात और कारनामों से उन पेशीन गोइयों का मिसदाक सामने आया था जो तौरात और इंजील में मौजूद थी, और जिनके मिसदाक के ज़हूर के लिए अहले किताब मुंतज़िर भी थे। हमने वहां पर पढ़ा था कि वो कहते थे कि जी, सूरह बकरा में हमने देखा ना कि वो कहते थे कि हमारे पास जो है ना वो रसूल आएंगे, जब वो और सूरह आल इमरान में भी हमने ये चीज पढ़ी कि रसूल आएंगे, ये उनका इंतजार करते थे। तो उनको मुंतजर होना चाहिए भी था क्योंकि उनकी किताबों के अंदर ये मौजूद था, इसलिए कि ये सारी पेशगोइयां उनके तस्दीक से पहले से
उन सबको ये सारी चीज़ों का पता था। तो अब लफ्ज़ तस्दीक के मफ़हूम के लिए अ, अब लोगों ने बहुत सी चीज़ें इस बारे में लिखी हैं। एक शेर है जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह से किया गया है कि मेरी जान और मेरा माल उन शाहसवारों पर कुर्बान जिन्होंने अपने बारे में मेरे सारे गुमान सच्चे साबित कर दिए। तो इस पहलू से अगर यहूदों ने सारा गौर करते तो वो देखते कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत से खुद उनकी और उनकी किताबों की तस्दीक हो रही है, लेकिन ये उनकी शामत थी कि जिसने उनकी तस्दीक की उसको उन्होंने जुटला दिया, और जिसकी हुज्जत और जिसकी शहादत का बारे गिराम वो इतनी मुद्दत तक उठाए फिरे, जब वो आया तो उन्होंने इसकी तकजीब कर दी। अब यहाँ पर देखें, ये इंसानों का, हम इंसानों का बहुत बड़ा अलमिया है कि हम लोग एक चीज का इंतजार करते रहते हैं। जब वो चीज आ जाती है, खसूसी तौर पर जो पहले वक्तों के अंदर उम्मतों के साथ जो हुआ कि क्योंकि अब तो कोई नबी नहीं आएंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी नबी हैं, तो आपके पास तो कोई रसूल नहीं आएंगे। तो पहली उम्मतों में अक्सर ये चीज रही है कि वो नबी का इंतजार करते थे। जब वो नबी आ जाते तो फिर सबसे पहले उनको जुटलाना शुरू कर देते थे। आज ये चीज किस तरीके से हो चुकी है कि आज हम अच्छी चीज का इंतजार करते हैं, जब वो अच्छी चीज आ जाती है लेकिन वो हमारी मर्जी की नहीं होती, हम उसको जुटलाना शुरू कर देते हैं। तो ये मामला जो है ये हम देखते हैं कि ये तकरीबन सारी कौमों के अंदर मौजूद है, मुसलमानों के अंदर भी ये चीज मौजूद है कि जिस चीज के लिए हम सारी जिंदगी कोशिश करते रहते हैं, जब वो चीज कहीं पर जाहिर होती है, जब वो चीज हमें मिलती है किसी अच्छाई की सूरत में, तो हम क्या करते हैं, उसका इनकार कर देते हैं। जैसे इस्लामी निजाम के नारे कितने ज्यादा लगाए जाते हैं, तो सारे नारे लगाने वाले जो हैं, जब कोई ऐसा बंदा कि जो उनको पसंद नहीं है वो इस्लामी निजाम का नारा लगाते हैं, तो उसको कहते हैं कि ये तो झूठा है, इसकी अपनी जिंदगी तो देखो जरा, कि मतलब वो इंसान के माजी को नहीं भूलते। इस चीज को देखकर एक अच्छी चीज को भी वो जुटलाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर ये मामला जो है ये अंबिया का है, तो अंबिया के साथ ये मामला किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खुसूसी तौर पर, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्हीं लोगों ने जुटला दिया कि जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ लाने का इंतजार कर रहे थे कई सदियों से। तो बनी इसराइल में मिसाक लेने की एक सूरत उसका जिक्र किया है कि काला अकररतुम व अखज़तुम अला ज़ालिकुम इसरी, तो ये क्या तुम इकरार करते हो और तुम इसके ऊपर जो है वो मेरा अहद जो है वो लेते हो, तो मेरा वादा लेते हो, मुझसे वादा करते हो। तो इसका एक खास मौका महल है जिसको निगाह में रखना चाहिए। तब इस ये वाला जो हिस्सा है इसका जोर समझ में आ जाएगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट बात अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर फरमा दी है। अब बात यह है कि मूसवी शरीयत में सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की जो शरीयत जिसको यहूदी दावा करते हैं कि हम उसको फॉलो करते हैं, और ईसाइयों के लिए भी बेसिकली वही शरीयत थी, लेकिन जब सेंट पॉल आया तो पॉल ने आके तो बेड़ा ही तबाह कर दिया। सारी की सारी जो मतलब मामला था सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों का, उसने उनसे बिल्कुल अपोजिट कर दिया। वो चीजें जो कि उस शरीयत में हराम थी वो भी लोगों के ऊपर हलाल कर दी, और ईसाइयत का ऐसा हुलिया बिगाड़ा कि ईसाइयत जो है वो अपनी असल ही खो चुकी। तो अब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में ये कायदा था कि जब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इस तरह की हदायतें उतरती, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनको इनफरादी तौर पर अपने सहाबा को यानी अपने साथियों को सिर्फ सुना देने पर ही इक्तफा ना फरमाते, बल्कि बनी इसराइल की पूरी जमात या कम से कम उनके तमाम सरदारों को खैमा इबादत में जमा करते। ताबूत सामने होता, और वो जो ताबूत सकीना जिसका हम पढ़ चुके हैं पहले, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और ताबूत सकीना के अंदर बेसिकली अंबिया की जो सारी विरासत थी वो उसके अंदर मौजूद थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वाज़ व तज़कीर के बाद खुदावन ताला का हुक्म सुनते, फिर सबसे उसके सुनाते और फिर सबकी अताअत का इकरार लेते। सबके इकरार के बाद लोगों को इसका गवाह रहने की ताकीद करते और अल्लाह को उस पर गवाह ठहराते कि लोगों ने गवाही दे दी, फिर कहते देखो इस पे अल्लाह भी गवाह है, अल्लाह जानता है कि हम सब ने गवाही दे दी। आखिर में उस हुक्म की नाफरमानी के बाद दुनियावी और उखरवी अवाकब और नताइज से भी आगाह फरमा देते कि अगर किसी ने इस हुक्म की नाफरमानी की तो उसके ऊपर इस दुनिया में और आखिरत में उसका क्या नतीजा निकलेगा। इस तरह गोया अल्लाह तबारक व तआला का हर अम्र और नही, जो अल्लाह ने हुक्म दिया और जिससे मना किया, अल्लाह तबारक व तआला और बनी इसराइल के दरमियान एक अहद और मिसाक का दर्जा हासिल कर लेता। अब ये किस कदर इबरत का मुकाम है कि जिस शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये जतन किए गए, उसके हामिलों ने उसके एक एक अहद के पुर्जे उड़ा के रख दिए। इस रोशनी में
جو फरमाया फमन तवल्ला बअदा ज़ालिका कि जो इसके बाद जो फिर गया, तो ये अल्फाज जो है इन पर अगर गौर करें तो बअदा ज़ालिका का हकीकी वजन हमें महसूस होता है कि इसके बाद भी जो लोग अपने अहद से मुंह मोड़ें तो उनसे बढ़कर अहद शिकन यानी वादा तोड़ने वाला कौन होगा। फस्क का लफ्ज यहाँ आम मानों में नहीं है, बल्कि जिस तरह इब्लीस के बारे में ये लफ्ज आया है कि फसका अन अमरी रब्बी ही, कि उसने क्या किया कि अपने रब के हुक्म से वो बाहर निकल भागा। इसी मफहूम में यही यहाँ ये बनी इसराइल के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि बनी इसराइल ने अल्लाह तबारक व तआला से जो वादा किया हुआ था और जो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको हुक्म दिया हुआ था, तो बनी इसराइल ने वो हुक्म उसी तरह से तोड़ दिया और उस हुक्म की हदें तोड़कर उससे बाहर निकल गए कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार ना किया। चलते हैं आयत नंबर 83 की तरफ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अफ़ गैर दीनिल्लाहि यबगून वलहु अस्लमा मन फिस समावाति वल अर्दि तौअन औ करहन व इलैहि युरजऊन। तो अफ़ गैर दीनिल्लाहि, तो क्या सवाए अल्लाह के दीन के वो ढूंढते हैं, वो कुछ ढूंढते हैं, इस दीन के अलावा कुछ ढूंढ रहे हैं वो, और इसके लिए फर्मा बरदार है। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला के लिए फर्मा बरदार है, जिसका ये दीन है उसकी फर्मा बरदारी करती हैं वो सारी की सारी चीजें जो आसमानों में हैं और जो जमीन में हैं, चाहे वो खुशी से करें चाहे वो नाखुशी से करें। यानी हर चीज अल्लाह तबारक व तआला की ही फर्मा बरदारी कर रहे फरमा ताबे फरमान है कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की पाबंद है। जो कुछ भी आसमान में और जमीन में है, चाहे वो उस हुक्म को खुशी से मान रही है चाहे वो नाखुशी से, लेकिन मान रही है। व इलैहि युरजऊन, और सारे के सारे लोगों को उसी की तरफ तो लौट के जाना है। तो अब इस से हमें ये पता चला कि जो अल्लाह तबारक व तआला का दीन है ये सारी कायनात का दीन है। जो अल्लाह तबारक व तआला ने ये तरीका दिया है वो सारे के सारे लोगों का के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है। तो अहले किताब के इस तमाम गुरेज और फरार पर अब ये एक सवाल किया है कि आखिर इस्लाम और पैगंबर इस्लाम से इस जो ये भाग रहे हैं उसका मकसद क्या है। क्या अल्लाह के दीन के सिवा ये अहले किताब किसी और दीन के तलबगार हैं। तो अल्लाह का दीन अज़ल से इस्लाम है। यही दीन उसने तमाम नबियों और रसूलों को दिया और यही दीन इस पूरी कायनात का दीन है कि अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत हर जगह पर मौजूद है। सूरज, चांद, बादल हो, हवा हो, आसमान और जमीन सब उसी दीन के पैरव हैं। अल्लाह तबारक व तआला की मान के सारे चलते हैं। इस्लाम की हकीकत अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देना है, तो वो सारे के सारे अपने आप को अल्लाह के हवाले किए हुए हैं। सारे अल्लाह ही की बात को मान रहे हैं, जैसा अल्लाह ने उनको हुक्म दे दिया है वो वैसे का वैसा कर रहे हैं। तो किसी की मिजाल है जो अल्लाह के हुक्म और उसके कानून से सरताबी कर सके, जो अपने महदूद दायरे अख्तियार में, और ये दायरा अख्तियार भी अल्लाह ही का असल में कायम करता है और उसी की मशीयत के तहत है। कोई सरताबी करते भी हैं तो वो भी दायरे तकवीनी के अंदर अल्लाह के कवानीन के तहत आजिजी और सरफगंदा हैं। किसकी ताब है कि वो जिंदगी और मौत के जो अल्लाह ताला ने तबई कवानीन बनाए हुए हैं वो उससे भाग सके। कोई नहीं भाग सकता। ये जिनको हम लॉज ऑफ फिजिक्स कहते हैं, लॉज ऑफ नेचर कहते हैं, कोई इन लॉज से भाग नहीं सकता। और ये लॉज हैं ये बेसिकली अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म हैं जो उसने पूरी कायनात के अंदर चलाए हुए हैं। बस फितरत और अक्ल का तकाजा यही है कि इंसान अपने महदूद दायरे इख्तियार में भी उसी खालिक व मालिक के कवानीन की तौअन ताबेदारी करे, यानी अल्लाह तबारक व तआला की मानते हुए ताबेदारी करे, जिसके कवानीन की ताबेदारी अपने दायरे तकवीनी में करहन कर रहा है, ना चाहते हुए जिनको कर रहा है। तो अच्छी बात यह है कि उनको चाहते हुए कर ले कि अल्लाह तबारक व तआला मैं तेरा तेरी अताअत करता हूँ। इसी तरह उसकी जिंदगी इस पूरी कायनात के जर्रा जर्रा से हम आहंग और हम रंग हो जाएगी। उसके दायरा इख्तियार और दायरा तकवीनी दोनों में कामल मुवाफ़क़त पैदा हो जाएगी और इंसान अल्लाह की बख्शी हुई आज़ादी को अल्लाह ही की शरीयत के हवाले करके अपने आप को फरिश्तों और नबियों की तरह अल्लाह के रंग में रंग लेगा। यही इस्लाम है और यही सिबगतुल्लाह है, यानी अल्लाह का रंग है। यही अल्लाह का दीन है। यही मजहब आदम है
यही दावत नूह यही मजहब आदम अलैहिस्सलाम है, यही दावत नूह अलैहिस्सलाम है, और यही मिल्लत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, और इसी की दावत लेकर ये आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं। फिर इस दीन फितरत और इस दीन कायनात को छोड़कर ये अहले किताब हो कर के इनके पास किताब मौजूद है, तो ये किस दीन के तलबगार हैं? कौन सा दीन मांग रहे हैं ये? वाइलेही और जाऊन जो आगे फरमाया, तो इसमें इस हकीकत की तरफ इशारा कर दिया है कि जिस तरह इस जिंदगी में अल्लाह के कानून से फरार की कोई राह नहीं है, उसी तरह आगे भी ऐसा नहीं है, आगे भी राह नहीं है। जो ऐसा नहीं है कि वो मर जाएगा तो वो छूट जाएगा, बल्कि वहां पर भी अल्लाह के पास ही जाएगा और अल्लाह के हवाले ही उसे अपने आप को करना पड़ेगा। और अल्लाह तबारक व तआला फिर इंसान से उसकी सारी की सारी चीजों के बारे में, जो कुछ उसने किया है उसके बारे में वहां पर वो सवाल करेगा। आयत नंबर 84 में फरमाया, कुल आमन्ना बिल्लाहि वमा उनजिला अलैना वमा उनजिला अला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक व याकूब वल अस्बात वमा ऊतिया मूसा व ईसा वन नबिय्यून मिन रब्बिहिम ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिनहुम व नहनु लहू मुस्लिमून। कुल, कह दीजिए ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए, आमन्ना बिल्लाहि, हम अल्लाह पर ईमान ले आए, वमा उनजिला अलैना, उस पर भी ईमान ले आए जो हमारी तरफ उतारा गया है, वमा उनजिला अला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक व याकूब वल अस्बाती, और उस पर भी ईमान ले आए जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम और औलाद याकूब अलैहिस्सलाम के ऊपर उतारा गया था। जो औलाद याकूब में से जो अंबिया हुए, जो उनके ऊपर उतारा गया था, हम उस सब पर ईमान ले आए। वमा ऊतिया मूसा व ईसा व नबिय्यून मिन रब्बिहिम, और जो कुछ उसमें भी ईमान ले आए जो कुछ सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को दिया गया, और जो कुछ सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को दिया गया, और जो कुछ जो पहले उनके दरमियान में जो नबी आए, जो कुछ उनको दिया गया उनके रब की तरफ से, हम उस सब पर भी ईमान ले आए। ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिनहुम, हम तो उनमें से किसी किसी में भी तफरीक नहीं करते। हम उन सबको अल्लाह के नबी मानते हैं। वो सारे के सारे अल्लाह के सच्चे नबी हैं। अल्लाह का पैगाम उनको जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने दिया था, उन्होंने वो सारे का सारा पैगाम लाके ऐ सच सारा लोगों को पहुंचा दिया। तो हम उन सब के ऊपर और उनके पैगाम के ऊपर और उनकी सच्चाई और सदाकत के ऊपर ईमान रखते हैं। व नहनु लहू मुस्लिमून, और हम अल्लाह तबारक व तआला की ही मानने वाले हैं। मुस्लिम का मतलब फरमान बरदार, जो कि किसी का फरमान को मानता है, किसी की बात को मानता है, तो हम अल्लाह तबारक व तआला की बात को ही मानते हैं। तो ये आयत जो है इसी तरह सूरह बकरा में भी गुजर चुकी है। तो हमने देखा था दूसरे ये सूरह बकरा के तकरीबन दरमियान में कि वहां पर ये आयत आई, और इसके तमाम अल्फाज और मतलब पर बहस भी हो चुकी, वहां पर हमने कर ली थी। तो ये पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से इस्लाम के कलमाए जामिया का ऐलान कराया गया है कि ये है इस्लाम। और सियाक़े कलाम ये है कि ये अहले किताब अगर इस्लाम के सिवा किसी और दीन के तालिब हैं, तो उन्हें उनकी ख्वाहिश के हवाले करो। शैतान जिस वादी में चाहे उनको ठोकर खिलाए, तुम उनके पीछे अपना वक्त रायगा ना करो, अपनी कोशिश रायगा ना करो, बल्कि ऐलान कर दो कि हम तो अल्लाह और उसके दीन पर ईमान लाए जो तमाम अंबिया का दीन है। हम उन अंबिया में कोई तफरीक नहीं करते कि किसी को माने किसी को ना माने, बल्कि हम तो सबको मानते हैं कि सारे अल्लाह के सच्चे नबी थे। हम सब पर ईमान रखते हैं और हम अल्लाह ही के फरमान बरदार हैं और अपने आप को उसी के हवाले करते हैं। आयत नंबर 85 में फरमाया, वमन वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु वहुव फिल आखिरति मिनल खासिरीन। बहुत ही अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर एक फैसला फरमा दिया, और इंसान को बहुत ज्यादा गौर करना चाहिए इस आयत के ऊपर, तमाम मुसलमानों को भी, और वो तमाम लोग जो कि अगर वो अपने आप को मुसलमान नहीं कहते लेकिन वो कुरान पढ़ते हैं, उनकी नजर से ये आयत गुजरती है, तो वो ये बड़े गौर से ये पढ़ें कि अल्लाह तबारक व तआला यहाँ क्या फरमा रहे हैं। वमन यब्तगी, और जो कोई चाहेगा, गैरल इस्लामी, इस्लाम के अलावा, दीनन, कोई भी रास्ता, इस्लाम के अलावा वह कोई दीन अगर अपने लिए चाहेगा, फलन युक़बल मिन्हु, तो अल्लाह और उससे बिल्कुल भी कबूल नहीं किया जाएगा। फलन, हरगिज नहीं, युक़बला, कबूल किया जाएगा, मिन्हु, उससे। जो इस्लाम को छोड़कर कोई और रास्ता अपनाएगा,
وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کو کوئی راستہ پسند نہیں ہے سوائے اسلام کے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں ایسا بندہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا، کہ جس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ آخرت میں جب ایک دفعہ چلے جائیں گے، واپسی ناممکن، بالکل واپسی نہیں ہو سکے گی۔ جو وقت دنیا میں گزر گیا بس وہ گزر گیا۔ تو یہ ایک وقت ہے ہمارے پاس کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم اللہ کے دین کی طرف آ جائیں، دماغی طور، دلی طور پر بھی، دماغی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی نجات نہیں ہے۔ ہمیں جتنی دنیا کی رنگینی نظر آتی ہے، جتنا ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہاں ہو سکتا ہے فلاں راستہ بھی صحیح ہو فلاں بندہ بھی تو بات صحیح کر رہا ہے، فلاں تہذیب بھی تو بہت اچھی ہے، لیکن ہم یہ چیز ذہن میں رکھ لیں، جو راستہ ہمیں اللہ نے بتایا ہے سچا وہی ہے، چاہے اس کے ماننے والے اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ ہم نے ماننے والوں کو نہیں دیکھنا، ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا راستہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین کیا ہے، اور اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ اس دین کے علاوہ جو کوئی اور راستہ اختیار کرے گا، چاہے وہ کسی بھی قسم کا اپنی طرف سے وہ بڑا اچھا راستہ سمجھ کے کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بالکل بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ دنیا میں جب تک سانسیں ہیں اس وقت تک انسان کے پاس سلیکشن ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے، لیکن جب آنکھیں بند ہو جائیں گی، سانسیں رک جائیں گی، اس وقت پھر انسان پچھتائے گا کہ میں نے یہ اپنی زندگی کیوں برباد کر دی، میرے پاس ایک موقع تھا لیکن پھر انسان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ دنیا کے اندر جتنا ہم دماغ لڑاتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ نہیں عقل یہ کہتی ہے، عقل یہ کہتی ہے، عقل اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بڑی محدود دی ہوئی ہے۔ اللہ کا علم لامحدود ہے۔ اس عقل کے پیمانے پر ہم اللہ کے دین کو پرکھنا چھوڑ دیں اور یہ چیز ہم بالکل نہ لائیں۔ اللہ نے جو چیز فرما دی، وہ اس نے جو فرمایا وہ حق ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم چیزوں کے بارے میں سوچیں نہیں، چیزوں کے بارے میں ضرور سوچیں، لیکن اس کے لیے ہمارے سامنے جو رہنمائی ہے، رہنمائی اللہ کی کتاب ہونی چاہیے، کہ اللہ نے جو اپنی کتاب میں فرما دیا ہم اس کو اچھے طریقے سے سمجھیں۔ جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اس کے مطابق ہیں، اس کے علاوہ جو کچھ ہے سارے کا سارا جھوٹ ہے۔ اس کے علاوہ اگر اس کے ساتھ کوئی چیز ٹکراتی ہے تو وہ سری جھوٹ ہے، وہ چیز اس چیز میں سچائی نہیں ہے۔ سچائی وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر فرما دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرما دیا۔ تو راستہ کامیابی کا صرف اور صرف یہی ہے۔ دنیا میں اصل میں رہتے ہوئے انسان کو اور بھی بہت سے راستے نظر آتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، پہلے وہ بھی ذرا ایکسپلور کر لوں۔ کوئی پتہ نہیں ہے کہ ان کی ایکسپلوریشن کے دوران ہی انسان کا جو ہے نا وہ کام تمام ہو جائے تو اس کو موقع ہی نہ مل سکے۔ تو اس لیے ہمارے پاس یہ ایک موقع ہے کہ ہم اس زندگی کو، اس وقت کو غنیمت جانیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کی طرف ہم آئیں، اپنے ذہن کو بھی اس کی طرف لائیں، اور ذہن اگر آ چکا ہے تو اپنے اعمال کو اس کے تابع کر دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے فرامین ہیں انہی کے اندر ہماری بھلائی ہے، انہی کے اندر ہماری نجات ہے، اس دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک صحیح طرح سے پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔